clinical. Uh, Dr. Aisha Hanif is assistant professor in periodontology department, Dow Dental College. Many of you all would be knowing her, and she is a very great teacher, and I am really thankful for her to joining us. Dr. Sumaira, on the other hand, she is also an excellent teacher, any words would be very less for her. So thank you so much to both the facilitators for joining us. And Dr. Aisha, I would like you to take over and start with the webinar. Thank you. Thank you so much, Lare, for such a wonderful introduction. That was very kind of you. Before starting the lecture, I would just say that I'm very proud that Sir Syed finally has a student body as well. It is very important to have student representatives who actually know the issues of the students, not just the issues, also organizing a lot of curricular and co-curricular activities as well. So first of all, congratulations, Lare, and your team for making up this society and conducting your first webinar. I think it's your first webinar. So it's a very good topic that you've chosen. And then obviously I have to thank my very good friend and my colleague, Dr. Sumaira, for inviting me for this webinar. She considered that I would be a better person to hold this up. Let me share my screen first. Thank you so much, ma'am, for appreciation. Of course, of course, you guys deserve it. Can you guys see my screen? Yes, we can, Dr. Aisha. We Okay. can see the Zoom and your WhatsApp. Okay. Finally, I figured it out. Okay. So today, what I'm trying to do is I'm trying to take you guys through the options that are available after BDS for you all. It's not gonna be boring, but it's gonna be really quick because we do not have a lot of time and we also want to leave some time for you to have some question answers answered as well. So I'm just gonna start. There's going to be a lot of TED Talk as well. I've been in the industry for the past 10 years, and in those 10 years, I've learned and picked up some things that I would like to share with you. So let's just start this. Is my screen clear? Yes. So you can see the entire screen, right? Yes, we can. Okay, perfect. Okay, perfect. So I'm going to start off now. A bit about myself. Larev gave such a wonderful introduction, but I always want to put up this slide because if you see, there are two reasons for that. One, I completed my BDS in 2012 and I completed my master's in 2022. So that means it took almost 10 years, almost 10 years for me to reach where I am. The point of putting this slide up is to tell you guys that it's not easy. Everyone that you see on social media living a very good life, or you consider them to be your mentors, they also had a very tough journey towards where they are. And yeah, so this is one of the reasons that I put this slide up. Secondly, then I did my Masters of Science in Clinical Education from University of Edinburgh in 2024. That was one of the most cherished achievement of my life so far, because I did that on Commonwealth Scholarship that I was awarded with in 2021. And then I'm also currently the member of Academy of Medical Educators. That's in Cardiff. So yeah, that's a bit about me. Now it's all about you guys. Before starting, this is what I want to start off with.
I know most of you would be thinking कि गलती कर दी BDS करके, कुछ और कर लेते तो अच्छा होता. और ये क्या हो गया, हमने बहुत गलत डिसीजन ले लिया. So डिसीजन गलत नहीं लिया आपने. It was not a mistake because we will see that what you can do, where you can do it, and how you can do it. And this is the perspective that we have to dive in today. So the thing is, a lot of us get into BDS with unrealistic expectations and we forget all our journey that was there that took us to BDS this far. I mean, so let's just see, you know, a lot of you did metric intermediate, O and A levels. Like, you know, there were hundreds and hundreds, thousands of those who passed your school, but not everyone got into dental school. Like from thousands sitting for the entry test, a very few hundred make into the dental school, right? And then even from those few hundreds, very few pass the dental school. So you see how the funnel is just, you know, narrowing down. Then we kind of forget when we are here in BDS कि अब हमने BDS पास कर लिया तो सबको मिल जाना चाहिए. जब सबको पहले ही नहीं मिला, एडमिशन ही नहीं मिला, फिर उसके बाद पास भी सारे नहीं हुए. So you see the funnel is kind of getting narrower. So naturally the competition is getting tougher and, you know, things are getting, you know, stricter. अब आगे beyond dental school क्या करें? So the number keeps getting smaller with every phase of your journey that you've entered so far. एक तो ये रखना है कि, you know, because the field that you've chosen is not easy. It's not easy, but you know the drill. You chose the not easy thing to begin with. So naturally, now that you're beyond dental school, you should be expecting that you'll have to level up your game up. So our expectations need to be realistic. होता क्या है कि a lot of us choose BDS क्योंकि BDS वाले पैसे बहुत कमाते हैं और 4 साल की डिग्री जल्दी हो जाती है, नौकरी अच्छी मिल जाती है, बहुत easy working hours होते हैं, तो easy है. The thing is, nothing is in life is easy, and especially nothing related to human body is easy. And then you guys are becoming dentists in this era where there's a lot of competition. Because of the social media, your patient also knows a lot of things. जो पहले शायद patient को नहीं पता था, तो आप कुछ भी कर दें, you know, चल जाता था. And the one thing that I really want to emphasize upon is that this degree is kind of a service business. इसके अंदर skills ज़्यादा matter करती हैं compared to just degree. For instance, you have 50 students in one college. वो 50 के 50 पास हो रहे हैं with the same degree. So what makes you stand out of them? Eventually, सारों ने, thousands of the people ने intermediate या A levels भी तो पास किया था, but what made them stand out कि उन्होंने dental school में admission ले लिया. That is the same logic कि आपको क्या differentiate करती है चीज कि degree तो सबके पास है, but how will you progress? So one thing that you need to know that your degree is not your 100% sure shot of you getting ahead or you getting a job. You will only get ahead if you have skills. It's a super competitive field, or in this era और भी ज़्यादा. Survival of the fittest is for everything and every form of life and everything that's there in the world. तो ये यहाँ पर भी यही है कि जो जितना ज़्यादा persevere कर लेगा, जो उसके पास जितनी ज़्यादा grit होगी, जितना ज़्यादा वो लगा रहेगा, वो जीत जाएगा, और जो हार मान लेगा वो नहीं जीतेगा. There is growth, but the growth is very slow. It's slow, but it's also steady. तो अगर slow and steady growth है तो इसके लिए आपको चाहिए perseverance, grit और persistence. So easy नहीं है, लेकिन impossible भी नहीं है. चलें जी, अब करना क्या है BDS के बाद हमें? लोग अक्सर पूछते हैं, a lot of students come to me like, you know, I've been into this, I'm a dinosaur, old dinosaur, so quite a lot of students come to me कि हम क्या करें आगे. The thing is that nobody can tell you, I can't tell you what you should do. I can just tell you the options that are available and I can guide you कि ये सारे options हैं. But how would I know? See, I don't know you. I have not seen you grown up. I have not seen your interests, your inclinations, your circumstances. So you are the best person to make this decision for yourself. तो आपने कुछ सवाल है जो खुद से पूछने कि आपकी inclination क्या है?
क्या आपको BDS करने के बाद क्लिनिक्स करने, क्या आपको एकेडेमिया में जाना है, क्या आपको पोस्ट ग्रेड करना है, व्हाट डू यू वांट टू डू? सो these are the questions that you need to answer for yourself for us to be able to tell you, okay, fine, these are the 3 options that are available according to your desire. Now again, what are your circumstances? I can't tell anyone कि तुम बाहर चले जाओ. Like, it's not easy. Also, it requires a lot of resources, a lot of time, money, and energy, and not everyone has that, and that's okay. That's another thing that you need to understand कि हर किसी की अपनी अपनी जर्नी है. So not one pathway is going to fit everyone. अभी तो क्या हो रहा था कि सबने मैट्रिक इंटरमीडिएट ए लेवल्स किया, सबने प्री मेड का एग्जाम दिया, सबने ट्यूशन सेंटर गए, सब बैठे प्री मेड के एग्जाम के लिए, और सबका डेंटल स्कूल में एडमिशन हो गया और सब डेंटल स्कूल से पास हो गए. सो बिकॉज एक जर्नी थी जो लिखी हुई थी, और उस जर्नी के अंदर कोई वेवर्ड ऑप्शंस नहीं थे, कोई पाथवेज चेंज नहीं हो रहे थे. सो नाउ व्हेन यू आर लेफ्ट विद द डिसीजन मेकिंग, तो समझ ही नहीं आता, क्योंकि बाय द टाइम यू ग्रेजुएट यू आर प्रॉब्ली 23-24 ईयर्स ओल्ड. तो 23-24-25 साल में आपने अपनी जिंदगी में ये वाले डिसीजंस लिए ही नहीं. और अगर आप सब कुछ क्लियर करते करते आ गए, आपने ए लेवल्स भी क्लियर कर लिया, आपने प्री मेड एग्जाम भी क्लियर कर लिया, MD कैट, और आपका डेंटल स्कूल में एडमिशन भी हो गया, और सारे 4 साल आप पास भी हो गए, और आप फेल ही नहीं हुए कभी. सो बिकॉज आप कभी फेल नहीं हुए, तो यू डोंट नो दैट देयर कुड बी अनदर ऑप्शन एज वेल वेयर यू कुड एक्चुअली नॉट मेक इट. तो कभी कभी फेल ना होना भी हमारे लिए एक मुश्किल बात हो जाती है, क्योंकि हमें समझ नहीं आती कि अब उस चीज को हमें हैंडल कैसे करना है. What is your life goal? So I don't know what is your life goal, so I can't really tell you कि आपने क्या करना चाहिए. Do you want to settle abroad? Do you want to make a living in Pakistan? आपका आगे की लाइफ गोल आपको पता है. And then what is your calling? Is dentistry your real calling? क्या आपने खुद अपनी पसंद से, अपनी मर्जी से एडमिशन लिया था? अगर नहीं भी लिया, तो क्या अब आपको BDS करने के बाद, हाउस जॉब करने के बाद अच्छी लग रही है डेंटिस्ट्री या नहीं लग रही? If it's not your calling, or if you do not like it, it's okay to change your path. It's okay, right? So first of all, make yourself clear of these 4 questions. चलिए जी, फिर उसके बाद हमने डिसाइड कर लिया कि हमें डेंटिस्ट्री करनी है. तो अब उसके बाद मजीद 3 और सवाल हैं कि क्या आपने पाकिस्तान में रहना है या बाहर जाना है, क्लिनिक्स करने हैं या एकेडमिक्स में जाना है, या करियर को चेंज करना चाहते हैं या डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं. ये 3 सवाल भी आपने आंसर करने हैं. अब हम ये बात कर रहे हैं, मैंने खुद से डिसाइड कर लिया कि आप लोगों ने डेंटिस्ट्री करनी है और अब आगे जाना है उस हिसाब से. तो अगर डेंटिस्ट्री करनी है और BDS कर लिया है, तो अब उसके बाद क्या करना है. सो अगर आप पाकिस्तान में रुक रहे हैं, तो ये इतनी बड़ी स्लाइड बनाई है मैंने कि अगर आप पाकिस्तान में रुक रहे हैं तो इतना सब कुछ आप कर सकते हैं. इसका मतलब कि डेंटिस्ट्री कोई बेकार चीज नहीं थी जो आपने की. पहला ऑप्शन तो हमें पता है कि डेंटल क्लिनिक खोल लें. सबसे अच्छी बात क्या होगी, दैट यू आर द ओनर ऑफ योर बिजनेस. बट वो भी आसान नहीं है हर किसी के लिए खोलना. तो हम हर एक ऑप्शन को एक एक करके देखेंगे इन अ वेरी ट्रू एंड रियलिस्टिक मैनर. सेकेंड इज कि आप बेसिक साइंसेज में चले जाएं. जब 3rd ईयर फाइनल ईयर में हम होते हैं ना, बाय द टाइम वी आर एंडिंग BDS, तो हम सिर्फ अपने टीचर्स को देखते हैं जो क्लिनिकल स्पेशलिटीज में होते हैं, और हम देखते हैं कि उसने FCPS किया हुआ, MDS करना है, और हमें लगता है बस एक वही डायरेक्शन है जिसके अंदर आगे BDS के बाद ये नेक्स्ट चैप्टर होना चाहिए. However, you're forgetting that you had brilliant teachers in your 1st and 2nd year as well. So हमें बेसिक साइंसेस के लोग भी चाहिए हैं. फिर क्लिनिकल स्पेशलिटी, लाइक आई सेड कि ये तो हमें ओनली पाथवे नजर आता है ना कि यही करना है उसके आगे. उसके बाद देयर इज रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स, एपिडेमियोलॉजी, पब्लिक हेल्थ. ये सब कुछ चीजों पे हम क्यों नहीं सोचते? Just 1 second, I think I did something to my screen. Okay, so I was trying to navigate it around to see the slide. Okay, perfect. And then there is public health, medical education. Like I just told you guys, my second master's is in clinical education that I did from abroad. That is not my primary specialty, but I did do that. So, I was kind of also diversifying my options. And then there is a definite career change. Maybe आपको dentistry नहीं अच्छी लगती है, and that is okay, because, if you all watched 3 Idiots, उसके अंदर एक जो कैरेक्टर था उसको नहीं करनी थी इंजीनियरिंग, एंड दैट इज ओके, बिकॉज इवेंचुअली यू हैव टू चूज समथिंग दैट यू लाइक, सो दैट यू वेक अप एवरी डे फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग. अच्छा,
ये सारी चीजें हैं जो हम देखते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं यूजुअल पाथवे से, कि सबसे पहले होता है कि क्लिनिक्स खोलने। ओके, तो क्लिनिक फौरन फौरन तो नहीं खोला जा सकता, या अगर आप खोल सकते हैं तो इससे अच्छी बात क्या है, बट देन यू कैन स्टार्ट ऑफ विद इंटर्निंग विद एन एक्सपीरियंस डॉक्टर। यू कैन कोलैबोरेट ऑन द केसेस दैट यू हैव। आपको कॉन्फिडेंस फौरन बहुत सारों को नहीं होगा कि हम फॉरेन क्लिनिक खोले, मे बी यू फील कि अभी मुझे मजीद और काम करने की जरूरत है। सो यू कैन ऑल्सो डू कोलैबोरेटिव केसेस विद योर सीनियर डॉक्टर्स। यू कैन ज्वाइन अ क्लिनिक एज एन एसोसिएट डेंटिस्ट, एंड देन जब आपने क्लिनिक खोल लिया है और आपको बहुत सारे केसेस ऑब्वियसली ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते, और एक जनरल डेंटिस्ट होना कोई बहुत बुरी बात नहीं है। हर इंसान को बीडीएस करने के बाद एफसीपीएस एमडीएस करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर हर कोई स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करेगा तो जनरल डेंटिस्ट्री कौन करेगा? एंड इफ यू आर अवेयर ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, तो जनरल डेंटिस्ट ज्यादा पेशेंट्स को केटर करता है कंपेयर टू स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट को आप अपने क्लिनिक में बुला सकते हैं अगर कोई डिफिकल्ट केस आए। लाइक आई एम सेइंग कि अगर कोई डिफिकल्ट केस आए, एक दिन में कितने ही डिफिकल्ट केसेस आ जाएंगे, शायद हफ्ते में एक दो, जिसके लिए आप स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट को बुला लें, बाकी केसेस आप खुद करें। एंड व्हेन यू डूइंग दैट, तो उसके साथ साथ फिर यू विल नो कि इवेंचुअली व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग, देन ओनली देन यू नो कि मुझे ये चीज सीखने की जरूरत है, या ये चीज में मेरी इंक्लिनेशन ज्यादा है, या ये चीज मुझे नहीं आती। तो फिर उस चीज के लिए आप शॉर्ट कोर्सेज या वर्कशॉप्स एक्सेट्रा कर लें। लाइक आई कीप ऑन सीइंग अ लॉट ऑफ थर्ड ईयर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स डूइंग इम्प्लांट के कोर्सेज। अब इम्प्लांट प्लेसमेंट इज अ वेरी स्पेशलिस्ट field. Implant placement is not easy, but a lot of general dentists also do that. It's fine. आपको केस सिलेक्शन अगर आती है तो आप जनरल डेंटिस्ट भी एक इम्प्लांट लगा सकता है। However, I tell the students कि या तो हाउस जॉब में करें, या आप क्लिनिक्स जब कर रहे हैं ना तो इस तरह के कोर्सेज करें ताकि आप उनको यूज तो कर सकें। अगर आप यूज ही नहीं कर रहे, लाइक आई कीप ऑन सेइंग कि इट्स ऑल अबाउट स्किल्स। इफ यू नॉट यूटिलाइजिंग दोज स्किल्स इन द क्लिनिक्स, यू आर फॉरगेटिंग देम। और अगर स्किल्स नहीं है तो कुछ भी नहीं। फॉर इंस्टेंस, you're in a service business, a restaurant owner or a salon owner, उसका salon या उसका restaurant चलेगा सिर्फ और सिर्फ उस वक्त जब एक consistent service मिलेगी, और एक उसके salon के services या उसके food business का मेयार जो है वो काफी high रहेगा consistently. So that is how exactly dentistry works as well. सेकेंड पाथवे है कि एकेडेमिया में चले जाएं, बेसिक साइंसेस में। ठीक है, तो आपकी कोई इंस्टीट्यूट को एज अ लेक्चरर ज्वाइन कर लें, या आप किसी पोस्ट ग्रेड प्रोग्राम में इनरोल हो जाएं, जो कि क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारी फील्ड में एकेडेमिया में प्रमोशन होती है बिकॉज ऑफ द डिग्रीज। तो आपको अगर हायर फैकल्टी पोजीशन चाहिए है तो फॉर दैट यू कैन इनरोल इन अ पोस्ट ग्रेड प्रोग्राम। You will then be able to strengthen your research and scholarly. That is very important. That also leads to a lot of other options and a lot of other opportunities abroad as well. And you can then also attend the international conferences and collaborations कर सकते हैं आप. Networking and PR is going to get you very far. So in this case, LinkedIn is your best friend. आप LinkedIn पे जाके अपनी प्रोफाइल्स को स्ट्रॉन्ग करें, अपने जो इंटरेस्ट हैं आपके उनके लोग ढूंढें, उनके साथ कोलैबोरेट करें, एंड देन दिस इज हाउ यू ऑल्सो फाइंड अ लॉट ऑफ अदर अपॉर्चुनिटीज एज वेल। दीज आर द कोर्सेज जो आप एकेडेमिया, अगर आप बेसिक साइंसेस को परस्यू करते हैं तो आप ये सारी डिग्रीज कर सकते हैं। MDS, MPhil, ये सारी वो डिग्रीज हैं जो पाकिस्तान में करंटली हो रही हैं। अच्छा, इधर आई एम ऑल्सो गोइंग टू से वन मोर थिंग कि हर चीज पाकिस्तान में हो रही है बट हर चीज कराची में नहीं हो रही। तो आपको थोड़ा सा कराची से बाहर निकलना पड़ेगा, बिकॉज सिर्फ कराची में 17 डेंटल स्कूल्स हैं। अगर 17 डेंटल स्कूल्स हर साल बच्चे निकाल रहे हैं तो वो सारे बच्चे कराची में क्या ही कर लेंगे। दैट इज वाई यू कीप ऑन सेइंग कि ये फील्ड तो बहुत सैचुरेटेड हो गई है। वो सैचुरेटेड इसलिए हो गई है कि सारे जो लोग हैं वो एक ही शहर में एक ही जगह पे काम करना चाहते हैं। दैट इज रॉन्ग। यू हैव टू आइडेंटिफाई द गैप एंड वैक्यूम एंड यू हैव टू स्प्रेड आउट। थर्ड इज कि आपने या तो एकेडेमिया में जाना, या आपने सोच लिया कि मैंने स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करनी है क्लिनिकल साइंसेज में। अब क्लिनिकल साइंसेज में अगर आप मास्टर्स करते हैं ना तो आप एकेडेमिया को भी परस्यू कर सकते हैं, और आप एक स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस यानी कि किसी हॉस्पिटल या अपने क्लिनिक में भी काम कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, नौकरी हासिल करने के लिए नहीं।
क्योंकि एक कॉलेज में कितने ही प्रोफेसर, कितने ही असिस्टेंट प्रोफेसर, कितने ही लेक्चरर्स चाहिए होंगे. सो इफ यू डूइंग पोस्ट ग्रेड कि मैं एमडीएस कर लूँ, एफसीपीएस कर लूँ और मुझे किसी कॉलेज में नौकरी मिल जाएगी, सो दैट इज समथिंग दैट यू नो योर एक्सपेक्टेशंस अगेन आर नॉट अलाइंड टू द जॉब मार्केट. वहां पर अगर ऑलरेडी लोग अवेलेबल हैं, तो आपने अगर सिर्फ इसलिए पोस्ट ग्रेड किया कि आपको एक लेक्चरर लगना था या सीनियर लेक्चरर लगना था, तो मे बी यू विल बी डिसअपॉइंटेड बिकॉज वहां पर लोग ऑलरेडी मौजूद हैं. So you are doing post grad to make yourself the most skillful. अगर आपके पास स्किल है तो आपको कहीं भी नौकरी मिल जाएगी. पोस्ट ग्रेड करना is not easy. It requires a lot of rigor. It requires a lot of mental perseverance. I'm gonna keep using this word again and again कि ये आपने आसानी से नहीं हो जाएगा. बीडीएस बहुत आसानी से हो जाता है और पोस्ट ग्रेड उतनी ही मुश्किल से होता है. अगर आपने सोचा है कि आपको पोस्ट ग्रेड करना है क्लिनिकल साइंसेज में, तो आपके पास ये ऑप्शंस हैं: एमडीएस, एफसीपीएस, एमसीपीएस और एमएससी. फिर आता है ये ड्रेडफुल क्वेश्चन कि भाई एफसीपीएस करें या एमडीएस करें, क्योंकि एफसीपीएस बेटर है एमडीएस से और एमडीएस की तो कोई वैल्यू नहीं है. सब लोग कहते हैं एफसीपीएस करो अगर क्लिनिकल पोस्ट ग्रेड करना है. तो भाई बात ये है कि आई हैव डन एमडीएस and I'm not gonna say कि MDS better है या FCPS better है. I'm just gonna lay out the basic differences between the two programs, and again you can choose the programs according to your circumstances. The thing is कि आप FCPS करें या MDS करें, ये दोनों प्रोग्राम लेवल 3 कैटेगरी में PMDC फ्रेमवर्क में आते हैं. ये PMDC फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये सब कुछ डॉक्टर सुमेरा कवर करेंगी आगे. पहले तो हम बात करते हैं एफसीपीएस की. एफसीपीएस इज अ फेलोशिप ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान. तो एक जो एफसीपीएस है वो बेसिकली एक डिप्लोमा है जो आपको सीपीएसपी इशू करता है. इसके लिए 4 इयर्स की ट्रेनिंग होती है. इसमें सिर्फ एक आईएमएम एग्जाम होता है और एक एग्जिट एग्जाम होता है. इसके लिए आपको हर ट्रेनी को एक मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है, जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में बहुत अच्छा रेशो है, प्राइवेट कॉलेजेस में इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आपको इसमें पैसे मिलते हैं. एक इसके अंदर मैंडेटरी रिसर्च करनी होती है जिसके लिए आपको एक एग्जिट एग्जाम देना होगा. हाँ, ऑल्दो कि थीसिस डिफेंस या इतना रिगरफुल थीसिस डिफेंस नहीं होता. एक प्री रिक्विजिट आपने पार्ट 1 देना होता है जो सबको पता है. उस पार्ट 1 को आप क्लियर करेंगे तो हर इंस्टीट्यूट का अपना भी कभी कभी एक टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, और वो सारे प्रोसेस के बाद आप उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एंटर हो जाते हैं. मसला सारा ये है कि इसके अंदर एक सुपरवाइजर 2 कैंडिडेट्स पर ईयर ले सकता है. कोई कोई इंस्टीट्यूट्स में हर 6 मंथली भी एंट्री होती है. तो अब थिंग इज कि 50 बच्चे अगर एक जनरल कॉलेज में से निकल रहे हैं और उसके बाद पोस्ट ग्रेड में हम कह रहे हैं कि वो साल में एक दफा इंडक्शन होगी सिर्फ 2 लोगों की. So you see how much the funnel is narrowing down since the beginning. Since when you started your intermediate or A levels, it is kind of narrowing down. तो आपने अपनी वो वाली expectations बिल्कुल अगर आप अपनी expectations को align रखेंगे तो you will know what you're getting into. अब इंटरनेशनल एक्रेडिशन का है कि अगर आपने एफसीपीएस किया हुआ है तो आप रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स एडिनबरा और यूके के एग्जाम्स दे सकते हैं. हाउएवर अगर आप बाहर कहीं एकेडेमिया की जॉब्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए एफसीपीएस इज नॉट रिकग्नाइज्ड. एफसीपीएस करें या एमडीएस करें, कहीं भी आपको बाहर नौकरी करनी है क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में तो आपको उस कंट्री का लाइसेंचर एग्जाम देना पड़ेगा. दीज डिग्रीज आर नॉट योर डायरेक्ट एंट्री टू द प्रैक्टिस वर्ल्ड ऑफ एनीवेयर दैट यू काइंड ऑफ प्रैक्टिसिंग. Second is MDS. MDS stands for Master of Dental Surgery. ये एक यूनिवर्सिटी डिग्री है compared to the diploma that the CPSP issues. This is a university degree with international standard of credit hours. इसके अंदर 4 साल की क्लिनिकल ट्रेनिंग होती है और इसके अंदर एकेडमिक्स भी होते हैं, जिसके अंदर हर साल में आपको एग्जाम पास करना होता है. लाइक बीडीएस हर साल आपका एग्जाम होता है. फाइनल ईयर एग्जाम आपका कभी कभी क्लिनिकल इवैल्यूएशन कंपोनेंट की तरह होता है, लाइक द एग्जाम हैपेंस फॉर एफसीपीएस. इसके अंदर स्टाइपेंड नहीं मिलता. इनफैक्ट आपको इसके अंदर यूनिवर्सिटी को कोर्स फी देनी पड़ती है. जैसे आपको अपनी बीडीएस के लिए कोर्स फी देनी पड़ती है, वैसे ही आपको एमडीएस के लिए भी कोर्स फी देनी पड़ती है यूनिवर्सिटी को. इसके अंदर एक बहुत बड़ा मैंडेटरी थीसिस होता है, वो थीसिस डिफेंस, और अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपको ये डिग्री नहीं मिलेगी.
जिस तरह से FCPS में पार्ट 1 होता है, लेकिन वो एक यूनानिमस होता है जो CPSP कंडक्ट कराती है। इसके अंदर हर यूनिवर्सिटी का अपना एक एंट्री एग्जाम होता है, जिसको क्लियर करने के बाद जो कैंडिडेट्स होते हैं वो उस यूनिवर्सिटी के अंदर अपना MDA स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें भी 2 कैंडिडेट्स पर ईयर पर सुपरवाइजर इंडक्ट किए जाते हैं। और इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन ये है कि जो भी आप इसको करने के बाद भी इंटरनेशनल एग्जाम दे सकते हैं, और अगर आप एकेडमिक जॉब्स बाहर सीख करना चाहते हैं तो ये आपको, क्योंकि इंटरनेशनल क्रेडिट आवर्स देती है, तो देयर इज अ बेटर चांस दैट यू कैन गेट इंटरनेशनल जॉब्स एज वेल। कहीं भी, अब मैंने ये सारी बातें आपको बता दी कि आप ये सारे कोर्सेज कर सकते हैं, बट बिफोर डूइंग एनी ऑफ दोज कोर्सेज देयर आर 2 वेबसाइट्स, एक CPSP और एक PMDC वेबसाइट के। उसके अंदर आपने डेफिनेटली ढूंढना है कि जो भी कोर्स आप परस्यू करने वाले हैं क्या वो रिकग्नाइज्ड है या नहीं। एंड सेकेंडली, अगर 2 बच्चों को एक इंस्टीट्यूट में नौकरी मिल रही है तो बाकी बच्चे क्या करेंगे? बाकी बच्चे कराची से बाहर निकलेंगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, अपनी मेट्रोपॉलिटन सिटी से थोड़ा सा बाहर निकलेंगे, ताकि अपॉर्चुनिटीज मिल सकें। So these are the websites के screenshots जैसे जो मैंने आपको लगा के इधर दिखाए हैं. So if you go there, and Dr. Sumaira is gonna talk more about it, but if you go there, you can search for all the institutions जो ये वाले courses आपको provide करते हैं. ठीक है जी, हमने ये 3 चीजों के ऊपर बात कर ली है. अब हम आते हैं आगे वाले 4, 5 and 6 के ऊपर हम बात करते हैं. एलाइड फील्ड्स क्या हो सकती हैं अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं? आप एपिडेमियोलॉजी, बायोस्टैट्स, बायोएथिक्स को परस्यू कर सकते हैं इफ फॉर इंस्टेंस समबडी रियलाइजेस कि उसको रिसर्च में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है. सो दीज आर द कोर्सेज दैट यू कैन डू अहेड आफ्टर BDS. BDS करने का कोई स्कोप नहीं है, कोई फायदा नहीं है. ये फायदा है कि अगर आप BDS नहीं करेंगे तो आप ये आगे वाले कोर्सेज भी नहीं कर सकते. डूइंग BDS एक्चुअली मेक्स यू एलिजिबल टू परस्यू ऑल दीज कोर्सेज. Then there is public health. Public health अगर आप करें तो उसके अंदर you can be placed as a public health policy maker, project manager. There are a lot of resources nationally and internationally जिसके लिए लोग चाहिए होते हैं, and there will always be demand of public health, especially for a third world country like Pakistan. Health professions education, medical education, that Dr. Sumaira is a champion of, and that is also my secondary degree. If you have, you will become a better teacher so that you can actually tell other teachers how to teach. Then बिल्कुल ही चेंज हो गया. MBA कर लिया आपने, MBA हेल्थ केयर मैनेजमेंट और हॉस्पिटल मैनेजमेंट में देयर आर लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशंस दैट आर गिविंग दिस कोर्स. एंड इसको करने के बाद इफ यू नो दैट यू हैव मैनेजरियल स्किल्स, देन व्हाई नॉट? योर BDS डिग्री एक्चुअली अलाउज यू टू डू MBA. You can make a career in pharmaceutical companies, hospital chains, teaching institutions, etc. फिर ये बहुत मजे की एक न्यू फील्ड आई है जो है बायोइन्फॉर्मेटिक्स या प्रोफेशनल एथिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी. इसको आप चेक करें. आई एम राइटिंग डाउन ऑल दीज नेम्स सो दैट यू गो एंड यू सर्च ऑन देम. देयर इज नॉट इनफ टाइम फॉर मी टू टेल यू ईच एंड एवरी इंस्टीट्यूशन which provides these courses, but these are all the courses that are provided in Pakistan. And then ये तो हम सोचते ही नहीं है कि एक BDS वाला न्यूट्रिशनल साइंसेज में क्यों नहीं जा सकता, डायटेटिक्स में क्यों नहीं जा सकता. आजकल तो सारा the focus is on health and healthy eating and everything, so why not? And who knows the connection of mouth with the body better than a BDS graduate. फिर हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में तो हमने सारी बात कर ली. देयर आर अदर अलाइड फील्ड्स दैट अगर आप फॉर इंस्टेंस यू गोइंग अब्रॉड एंड यू डू नॉट वांट टू परस्यू एनी ऑफ द क्लिनिकल सब्जेक्ट्स, एनी ऑफ द क्लिनिकल पाथवेज और बेसिक पाथवेज और व्हाटएवर, आपको डेंटिस्ट्री एग्जैक्टली एज इट इज नहीं करनी. सो व्हाट नेक्स्ट? AI. If you do a course in AI right now, then you have identified the vacuum. It's a growing field right now, and definitely you will increase your chances of jobs or whatever placement if you identify the vacuum in it. पहले हमने बात की थी पब्लिक हेल्थ की. ये है डेंटल पब्लिक हेल्थ. दिस इज समथिंग दैट इज स्पेसिफिकली ऑफर्ड अब्रॉड. इसके अंदर आप पॉलिसी मेकर बन सकते हैं, बट स्पेसिफिकली फॉर डेंटल इश्यूज.
क्लिनिकल एजुकेशन जो कि मेरी डिग्री है, जो कि एडिनब्रा ऑफर करती है, उसका एक कंपोनेंट है, उसी का सिस्टर कंपोनेंट है मेडिकल एजुकेशन, जो पाकिस्तान में ऑफर होता है। उसके बाद सिमुलेशन एक्सपर्ट इन हेल्थ केयर सेटिंग्स इज वन थिंग दैट इज ऑल्सो वेरी मच इंडोर्स्ड दीज डेज, एंड दिस इज समथिंग दैट यू शुड लुक इनटू। डेटा साइंस एंड मैनेजमेंट, अ बिग वैक्यूम। फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी एंड टिश्यू इंजीनियरिंग। अच्छा, एक बात है कि इफ यू अनगो कि ये तो बड़ा फैंसी सा नाम लग रहा है, ये वाली चीज मुझे करनी चाहिए, डेफिनेटली करें, बट यू हैव टू बी रेडी कि इफ यू आर डूइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन यू कमिंग बैक टू पाकिस्तान, हो सकता है कि आपको चैलेंजेस मिले। उस पर भी डॉक्टर सुमेरा बात ज्यादा बेहतर बता सकती हैं कि फॉर इंस्टेंस आपने कोई डिग्री पहली पहली दफा की है। फॉर इंस्टेंस आई वाज द फर्स्ट पर्सन हु हैज डन क्लिनिकल एजुकेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा एंड आई वांटेड टू गेट इट accredited in Pakistan, तो मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ी. It was the first time ever, but because it is done from one of the top ranked universities of the world, and it is the degree that is actually, you know, has all its credit hours, everything is aligned. So I knew कि eventually time लगेगा, लेकिन ये accredit हो जाएगी. And last month मेरी ये degree PMDC ने accredit कर दी है. So if you're doing something that is new, फॉर इंस्टेंट अभी जो पीरियोडोंटिस्ट हमारे पास नए आए हैं, पेरियोडोंटोलॉजी इज आल्सो वन थिंग दैट हैज अ लॉट ऑफ वैक्यूम। तो पीरियोडोंटिस्ट को भी टाइम लगा अपनी जगह बनाने में, बट जगह बन जाती है, आपको वैक्यूम आइडेंटिफाई करना है। फिर ये एक बहुत बड़ा वैक्यूम है स्पेशल केयर डेंटिस्ट्री का। स्पेशल केयर के चैलेंजेस ओरल हेल्थ के बहुत ज्यादा हैं पाकिस्तान में, इस चीज की तरफ कोई तवज्जो ही नहीं देता। तो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन लुक इनटू। तो ऑप्शंस तो खत्म ही नहीं हुए, मैंने इतनी सारी बात कर दी, इतने सारे ऑप्शंस हैं दैट यू कैन परस्यू। पॉइंट इज कि हम ये कर तो लें, तो इसका स्कोप क्या है? मुझे आप वो फील्ड बताएं जिसके बाद मुझे नौकरी मिल जाए और मुझे अच्छे पैसे मिले, और जो मैंने पैसे लगाए हैं बाहर की डिग्री पे वो सारे रिकवर हो जाएं। आप बाहर से डिग्री कर रहे हैं यहाँ पर पैसे रिकवर करने के लिए, तो गलत एक्सपेक्टेशन है आपकी, कभी भी नहीं होंगे रिकवर। आप बाहर से डिग्री कर रहे हैं उस नॉलेज को पाकिस्तान में लाने के लिए, दैट इज द राइट आइडिया, एंड ओनली देन गो फॉर इट। स्कोप किसी भी चीज का होता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। डिग्री 50 बच्चे कर रहे हैं, लेकिन 50 में से 50 को नौकरी नहीं मिल रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बीडीएस का स्कोप नहीं है। इसका मतलब ये है कि मे बी वो जो 50 बच्चे हैं वो फिट टू प्रैक्टिस नहीं है। तो आप डिग्री का स्कोप खुद बनाते हैं बाय गेनिंग द नेसेसरी स्किल्स। यू हैव टू बी एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस, एंड अपॉर्चुनिटी लेनी है आपने। अपॉर्चुनिटी मिलती कैसे? व्हेन यू आर आप एक चीज में लगे हुए हैं और आपने उस जगह को छोड़ा नहीं है। सारी बात आती है व्हाट वेयर हाउ की। तो फिर अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आई हैव गिवन यू ऑल द आइडियाज, हाउ मच विलिंग आर यू टू रिसर्च ऑन दिस ऑप्शन, ऑन दीज ऑप्शंस। अगर आप सिर्फ ये बैठे हुए हैं कि आपको कोई हाथ में लाके सब चीज दे दे, तो दैट इज अगेन नॉट द माइंडसेट दैट इज गोइंग टू टेक यू अहेड। अच्छा, अब अगर हमें बाहर जाना है, प्रैक्टिस करनी है, तो द थिंग इज कि दीज आर ऑल द कंट्रीज जिसके अंदर एक मैंने जो एक आउटलाइन दी है। आई नो आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं हर कंट्री का अलग अलग से बताऊं, बट वी नो कि वी हैड दिस क्वेश्चन गिवन। एक, इफ यू गाइज वांट, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड। इसके अंदर मैंने मेंशन किया हुआ है बहुत छोटा छोटा सा कि करना क्या है। अब क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है हर कंट्री को डिस्कस करने का, जो कि ऑनेस्टली प्लीज आप अगर कोई भी, लाइक आई डोंट माइंड बीइंग रीच्ड आउट टू ऑन इंस्टाग्राम और लिंक्डइन और व्हाटएवर, बट इफ यू गोइंग टू मैसेज मी कि आई वांट टू गो अब्रॉड, there are 292 countries. I can't tell you about each country on Instagram, right? So you have to narrow your choices down. You have to do basic research yourself, and then you can definitely approach me. So what I'm doing here, I have listed my Instagram account here. This is my Instagram handle. When you go on the highlights, just tap on this highlight. There are a lot of interviews and a lot of podcasts that we have done for different countries. उसके अंदर सारी कंट्रीज का है एक्सेप्ट फॉर न्यूजीलैंड, एंड वी हैव हैड एक्सपर्ट्स फ्रॉम ऑल दोस फील्ड्स, जिन्होंने एग्जाम पास किया हुआ था, जिनकी जो भी उनकी जर्नी थी, दैट वी हैव आइडेंटिफाइड देयर। एंड जस्ट गो ऑन दिस हाईलाइट एंड टैप ऑन दिस, एंड यू विल फाइंड द कंट्री दैट यू आर ट्राइंग टू लुक फॉर। ठीक है, तो आपने रिसर्च करनी है और फिर और ज्यादा रिसर्च करनी है। आप किसी को अगर इस तरह से अप्रोच करेंगे कि आई नीड गाइडेंस, व्हाट डू आई गाइड यू ऑन, राइट,
The first 4 questions that I told you, did you answer those for yourself? Have you identified your life goal? क्या आपको अपनी डायरेक्शन पता चल गई है, समझ आ गई है? उसके बाद I can tell you कि okay fine, these are the options for you. If you come very blank to me कि मुझे ये करना है, मुझे नहीं पता कि what are your circumstances, and then it also shows that you didn't do any effort yourself. So that doesn't make sense कि what are you expecting me to give you everything on hand? ऐसे हो नहीं सकता. अब आपके पास एक आउटलाइन मौजूद है जिसके ऊपर आप बहुत सारी रिसर्च कर सकते हैं. यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज द स्कोप ऑफ दैट. बाय स्कोप आई मीन कि वेयर यू कैन बी प्लेस्ड विद दैट. कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो उसको ऑफर कर रही हैं उन कोर्सेज को. अगर आप वो कोर्सेज करेंगे तो कैन यू एक्चुअली मैनेज द रिसोर्सेज. डू यू हैव स्कॉलरशिप ऑप्शंस अवेलेबल फॉर दोज कोर्सेज एंड ऑल. तो उसके लिए सब कुछ अवेलेबल है इंटरनेट पे. एंड नाउ चैट जीपीटी इज योर बेस्ट फ्रेंड. चैट जीपीटी को आप अच्छे अच्छे प्रॉम्प्ट्स दें, वो आपको एक आउटलाइन बना के देगा. उस आउटलाइन को आप सर्च करें. इवन बेटर, इवन इजियर टू सर्च. कभी भी जब आप जाएंगे अपने टीचर्स के पास और उनसे पूछेंगे मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, आप उन लोगों से एडवाइस लें जो आपकी जिंदगी जी ही नहीं रहे जो आप जीना चाहते हैं. यू विल ऑलवेज गो इनटू अ स्पाइरल ऑफ नेगेटिविटी. सो प्लीज डोंट डू दैट. Social media is your best friend. You are lucky to be living in the age of social media. It has its pros and cons, but I believe it has more pros than cons. Just depend how you use social media. So there are a lot of groups on social media. Make your profile on LinkedIn. Connect with like-minded people. That's how you build your network, and that's how you also get a lot of opportunities. बट अगर आप किसी को मैसेज करें, किसी को अप्रोच करें, तो उसको भी टाइम दें, उसका भी लिहाज करें कि उसकी अपनी भी जिंदगी है. एंड यू नो वी आर नॉट अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया 24/7. And then again, this is your timeline. होता क्या है कि BDS के बाद बहुत सारे बच्चे पार्ट 1 देते हैं. आपके क्लास फेलोज में से कुछ का जल्दी पार्ट 1 क्लियर हो जाएगा. बाकी सब डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हम बहुत यूजलेस हो गए. सो प्लीज डोंट डू दैट. आई नो इट्स वेरी इजियर सेड देन डन. लेकिन ये आपको याद रखना है कि everyone has a different timeline. So you will have to be okay with whatever timeline the universe has written for you. फिर उसके बाद और मजीद ये ऑप्शंस हैं कि आपको अपने होराइजन को मजीद डाइवर्सिफाई करना है और एक सेकेंडरी इनकम की स्ट्रीम होनी चाहिए अदर देन यू नो वट एवर यू डिड BDS. बट फॉरेन नौकरी नहीं मिल रही, बट कहीं ना कहीं से पैसे तो आने हैं बिकॉज हाउस जॉब के बाद तो पैसे भी नहीं मिल रहे. सो a lot of people go for CSS या SPSC exams. That is something that gets you government administration jobs. Go for it. Second is very common and kind of gets you a good money as well. That's academic writing, content creation. And then why don't you use social media to your advantage? Why I see a lot of my students, you know, just making amazing content on their Instagrams, TikTok. So those are actually something that if you have the inclination for that, go become a social media celebrity. The third thing that I see that's on the rise is aesthetic physician. BDS is now officially allowed to practice aesthetic medicine. That is something that you can look into. And then you should have a side hustle. I see a lot of people, they are good at so many things that they do. If you have a skill, you can always make money. Sell whatever you're good at. And you're very lucky that you have a platform readily available to you, your Instagram or your TikTok. Your social media is your best friend. If you know how to cook or you know how to bake, or you maybe do good flower arrangements or whatever you do, crochet, or you do something, whatever you're good at, make an account and sell it. You will have a side hustle. Who knows that you might actually leave 9 to 5 and, you know, just start doing this only. पर करेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि हमें कुछ और भी आता है. So इतनी सारी TED Talk करने के बाद just gonna give a few final remarks. You have to align your expectations. It is a tough profession. It is very competitive. So you need a lot of grit, a lot of patience and a lot of perseverance. शुरू में कम पैसों की नौकरी मिले कर लें. पैसे नहीं मिल रहे और आपको इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिली है, उसमें कोई मुजाहिका नहीं है बिकॉज यू गेटिंग टू लर्न. ऑल्सो क्लिनिक्स, बहुत सारी पोस्ट होती हैं जिसमें आई सी के क्लिनिक्स आर नॉट पेइंग यू. द थिंग इज क्लिनिक्स आर नॉट मेंट टू पे यू. दैट पर्सन built that clinic by their own hard work. और अगर वो उस क्लिनिक में आपको इंटर्नशिप भी दे रहे हैं तो that's their एहसान on you.
उनका कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो आपको रखें और आपको पैसे दें। अगर वो आपको रख रहे हैं और आपको थोड़े बहुत पैसे दे रहे हैं, यू लकी। स्टार्ट ऑफ विद द गुड मनी, जस्ट गेट इनटू द सिस्टम एंड जस्ट परसिवियर देयर, इवेंचुअली यू मेक समथिंग आउट ऑफ इट। इफ यू आर थिंकिंग कि मैंने बीटीएस कर लिया है और मेरे पास डिग्री है और मुझे अब 1 लाख की नौकरी मिल जानी चाहिए, तो आपको 1 लाख रुपए कोई क्यों दे, जब तक वो ये ना देखे कि आपकी क्या स्किल्स हैं, हाउ वैल्यूएबल, व्हाट इफ यू आर अ वैल्यूएबल एसेट टू द ऑर्गेनाइजेशन और नॉट, व्हाई वुड एनीवन पे यू। एंड if without that, if you're expecting कि आपको कोई पैसे दे दे बैठे बैठे क्योंकि आपने बीडीएस कर लिया, again that is wrong। टाइमलाइन, आई कीप ऑन सेइंग दैट कि अपने आप को कंपेयर नहीं करें। जो टीचर्स आप देख रहे हैं या इनफैक्ट यू लुकिंग एट मी एज वेल कि यू नो ओ ये बैठ के इधर इतने मजे से ये चीजें बता रही हैं, शी हैज हैड इट वेरी इजी और इनको तो सब कुछ मिल गया हुआ है, तो यू नो सोशल मीडिया इज अ लाई। और हम अपने बुरे मोमेंट्स कभी भी शेयर नहीं करते। हम द स्लीपलेस नाइट्स, एवरीथिंग, वी डोंट पुट दैट ऑन सोशल मीडिया और वी डू नॉट ब्रिंग दोज इमोशंस टू वर्क एज वेल। So it has never been easy. Like I always put the first slide. It took me 10 years to get to where I wanted to because of my circumstances. So you know, all my friends probably got ahead before me, but I was okay because that was not my timeline. ये बात तो मैं बार बार कहती रहूंगी कि परसिवरेंस इज नीडेड, ठीक है। Nobody has it together. हर किसी का नर्वस ब्रेकडाउन आता है, हर किसी के स्लीपलेस नाइट्स आते हैं, सिर्फ आप अकेले नहीं हैं। अगर आपको मेंटोर्स अपने नजर आ रहे हैं, उनके भी ऐसे दिन आते हैं। और अब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। You didn't make a wrong choice by choosing BDS. There are a lot of possibilities. It just requires exploration और वो आपका काम है एक्सप्लोर करना। Thank you so much. I will be gladly taking question and answers, or if Sumaira wants to take over, she can take over. Thank you so much, Dr. Aisha. It was an amazing session. मेरे ख्याल से इससे बेहतर शायद कोई मेंटोर नहीं कर सकता इन सबको। इतने अच्छे तरीके से आपने हर चीज, आई थिंक जितने सवाल हमारे पास आए थे, आपने हर सवाल को टच किया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया। जस्ट टेक 5 मिनट जिसमें से पीएमडीसी का बता के जस्ट मूव ऑन टू द क्वेश्चन आंसर सेशन, क्योंकि यू हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग सो फार। ठीक है, we do have some questions and we will be taking them after I share अपनी भी थोड़ी बात। ठीक है, तो I'll just share my screen and then we can wrap up the session इसके बाद। I hope my screen is visible to all. ठीक है, thank you for the sweet comments for Dr. Aisha in our chat room. So what I'm trying to do is कि I could see कि सब ये कह रहे थे कि PMDC इसके बारे में क्या कहता है, PMDC उसके बारे में क्या कहता है। So I'm just going to focus on what PMDC says regarding everything. Or as I have been introduced, I'm Dr. Sumaira Saeed. I work as an assistant professor and head of medical education department at Sir Syed College of Medical Sciences. उसके अलावा I have a master's in health professions education and I'm doing my second master in bioethics from Aga Khan University. So as Dr. Aisha said, we are coming from a background of experience. Even I completed my master's after a break of 10 years. I did my first master's in 2023, I would say, and I'm currently pursuing my second master's in 2025. So it does take time for everyone. Okay, so let's move on. तो द मेन क्वेश्चन इज के जैसे डॉक्टर आयशा ने भी बोला, व्हाट आर यू एमिंग फॉर। ठीक है, आप क्या रहे हैं अपनी लाइफ के साथ। वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years, इन 10 years? व्हाट डू यू वांट टू सी? इफ यू वांट टू सी योरसेल्फ वर्किंग एट एन इंस्टीट्यूट, कोई एकेडमिक पोजीशन चाहिए। ठीक है, एकेडमिक पोजीशन आपकी किसी क्लिनिकल साइट पे हो सकती है, आपकी किसी नॉन क्लिनिकल साइट पे हो सकती है, देन यू नीड टू बी श्योर कि पीएमडीसी क्या कहता है उन चीजों के बारे में। पीएमडीसी उन चीजों के बारे में हमें क्या रेकमेंड करता है किसी भी इंस्टीट्यूट में काम करने के लिए। यू शुड बी ऑन द ट्रैक टू फॉर पीएचडी, स्पेशली फॉर द नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स। क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में जैसे डॉक्टर आयशा ने थोड़ी देर पहले एक स्लाइड दिखाई थी, वी विल बी डाइसेक्टिंग दैट स्लाइड के उसके अंदर और क्या चीजें हैं, बट यू नीड टू बी वेरी क्लियर। पीएमडीसी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस रखता है, आपसे कोई रिक्वायरमेंट्स रखता है कि जो आप मीट करेंगे तो फिर आप उनके इंस्टीट्यूट में वो टीचिंग पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। ये पीएमडीसी की टीचिंग रेगुलेशन का क्यूआर कोड है, ठीक है, जो मैंने लिंक किया है। यू कैन स्कैन दिस कोड और इसी डॉक्यूमेंट के बारे में हम बात कर रहे होंगे और आपको ये डॉक्यूमेंट पढ़ना आना चाहिए।
इस डॉक्यूमेंट में लिखा क्या हुआ है, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग आई गिव यू अ सेकंड टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ठीक है, तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर आखिर पीएमडीसी ने ऐसे बोला कि पीएमडीसी ये कहता है कि अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम करना चाह रहे हैं, आई विल टर्न ऑन माय एनोटेशन, ठीक है, जिसमें आपका ओरल बायोलॉजी आ गया, जो भी ये डिपार्टमेंट में आप करना चाह रहे हैं, लेक्चरर की पोजीशन तो आप डायरेक्ट अपनी आ सकते हैं बीडीएस के ऊपर, ठीक है। लेकिन टू बी ए सीनियर लेक्चरर फॉर एनी ऑफ दीज डिपार्टमेंट यू नीड टू हैव अ लेवल 2B और अ लेवल 3 डिग्री, ठीक है। इसी तरह से इफ यू वांटिंग टू वर्क इन एनाटमी, फिजियो, फार्मा, किसी भी डिपार्टमेंट में एज ए बीडीएस आप काम करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी आपके पास ये डिग्रियां होना बहुत जरूरी है। टू बी एंड लेवल 3, ठीक है। व्हाट इज दिस 2B एंड व्हाट इज दिस 3? दिस इज द स्क्रीन जिसके ऊपर हम फोकस करेंगे, एंड दिस इज द सेम वन जो डॉक्टर आयशा ने भी अभी शेयर किया था। इसके अंदर पीएमडीसी का जो मैंने आपके साथ रेगुलेशन शेयर की उसमें क्लियरली मेंशन्ड है, लेवल 1 आपका बीडीएस है, लेवल 2 भी आपकी डिग्री से, जो ए है वो 1 साल की है, B2 एंड मोर देन 2, और 3+ जो है वो आपकी लेवल 3 आती है, जिसके अंदर आपका एफसीपीएस आता है, जिसके अंदर आपका एमडीएस वगैरह आता है, ठीक है। और जितने भी ये एमफिल्स है, एमएचपी है, जो 2 years की डिग्री है, दिस इज द डिग्री दैट यू रिक्वायर। लेकिन पीछे लिखा हुआ था 2B, इसका मतलब ये है यू कैन नॉट हैव अ डिग्री जो कि 1 साल की हो, ठीक है। इस डिग्री के ऊपर आपको नहीं मिलेगी टीचिंग पोजीशन। प्लीज जो लोग जाके एमएससी कर रहे हैं क्लिनिकल साइंसेज के अंदर, फिर जाके परेशान हो रहे हैं कि हमें कोई हमारी डिग्री क्लियर नहीं हो रही है, हमें कोई टीचिंग पोजीशन नहीं मिल रही है, प्लीज 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 ये आपको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि कौन सी डिग्री पीएमडीसी मानता है। आई हैव सीन सो मेनी पीपल अपने, आई हैव वर्क विद पीएमडीसी, आई वाज अ पार्ट ऑफ पीएमडीसी फॉर 2 years, और मेरे पास इतने केसेस आए हैं वेरी गुड यूनिवर्सिटीज से, ठीक है, कराची की वेल नोन यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट जो है मारे मारे फिरते हैं, उनको कोई जॉब्स नहीं मिल रही होती, वो परेशान हो रहे होते हैं। वही वाली बात, उन्होंने कोई इतनी अलाइनमेंट नहीं की होती कि उन्होंने कहाँ काम करना होता है, ठीक है। अगर आप कोई डिग्री इस तरह की करके आ रहे हैं, 1 साल की करके आ रहे हैं, या पब्लिक हेल्थ की डिग्री करके आ रहे हैं, यू विल नॉट लैंड अ जॉब इन अ टीचिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो प्लीज थॉरली अंडरस्टैंड कि ये डॉक्यूमेंट क्या कह रहा है और किस पोजीशन पे आपको कौन सी जॉब मिल सकती है, ठीक है। तो यू नीड टू हैव अ लेवल 2B एंड लेवल 3। और उसके अलावा कौन सी ऐसी डिग्रीज हैं जो पीएमडीसी आपकी एक्सेप्ट करता है, पाकिस्तान में कौन सी पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन है, दिस इज अ QR कोड फॉर दैट, ठीक है। ये पीएमडीसी की वेबसाइट के ऊपर इजीली अवेलेबल है, आप जाके उनके अनाउंसमेंट भी जाके खुद भी देख सकते हैं, बट फॉर योर ईज आई एम शेयरिंग अ QR कोड, ठीक है। और आई विल ऑल्सो टेल यू हाउ टू नेविगेट दीज पीजी क्वालिफिकेशन वहां पे मौजूद है, ताकि यू डोंट लैंड अप इन ट्रबल विद पीएमडीसी आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री, ठीक है। जस्ट गिविंग यू अ मिनट टू स्कैन द कोड। तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर यू विल सी कि आप जो भी डिग्री करना चाह रहे हैं उसके आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल रहे होंगे, मल्टीपल एक्सेप्टेड डिग्रीज मिल रही होंगी। सिंपल एग्जांपल है कम्युनिटी डेंटिस्ट्री, उसके अंदर यू विल आल्सो गेट एमएससी, यू विल आल्सो गेट एमडीएस, यू विल आल्सो गेट एमफिल। आपको पता होना चाहिए कि आप ये डिग्री क्यों कर रहे हैं, ठीक है। आप टीचिंग जॉब के लिए कर रहे हैं तो कौन सी वाली आपको चाहिए, ठीक है। आपके पास इतना टाइम है भी देने के लिए नहीं कि 4 साल की डिग्री, एमडीएस इज लेवल 3, मतलब वो 3 सालों प्लस की डिग्री है, तो इतना टाइम आपके पास है कि आप इस तरह की कोई डिग्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो यू नीड टू बी श्योर। और इसी डॉक्यूमेंट के अंदर, ओके, सो लेट मी जस्ट रिमूव दीज एनोटेशन जो कि कोई लगा रहा है इस वक्त, ठीक है। तो इसके अलावा यू विल आल्सो सी इन दिस डॉक्यूमेंट कि इन 2-3 ऑप्शंस के अलावा यू विल गेट कि कौन सी यूनिवर्सिटी से ये डिग्री हो रही है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कि आपकी ये एमएससी जो है ये 2-3 यूनिवर्सिटीज आपके पास करवा रही हैं, ठीक है। इसी तरह से ये एमडीएस के ऑप्शंस हैं जो कि एक्रेडिटेड बाय पीएमडीसी ऑलरेडी हैं, ठीक है। और इसी तरह से या की एमफिल के अलग अलग ऑप्शंस हैं, और इसके अलावा भी बेतहाशा आपको पास ऑप्शंस होंगे। सो व्हाट यू नीड टू डू इज कि अगर आप किसी डिग्री, यू कम अक्रॉस अ डिग्री कि अच्छा दिस इज समथिंग आई वांट टू नो, यू शुड बी एबल टू क्रिटिकली एनालाइज कि ये डिग्री किस लेवल की है, इस डिग्री के बाद जो मैं अचीव करना चाह रहा हूँ वो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसी क्राइटेरिया के ऊपर आपको हर डिग्री को जज करना है कि अच्छा ये एमफिल है, एमएससी है या एमडीएस है, कौन सी डिग्री है, किस यूनिवर्सिटी से हो रही है,
ये उसके साथ एक्रेडिटेशन में है या नहीं, पीएमडीसी में, ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। उसके अलावा जब आप ये डॉक्यूमेंट खोलेंगे तो आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन वन मोर थिंग। इस तरह का ये डॉक्यूमेंट आपके पास खुल रहा होगा, एक साइड पे आपको क्वालिफिकेशन का नाम मिल रहा होगा, एक तरफ इंस्टीट्यूशन होगा और एक तरफ यूनिवर्सिटी होगा। ठीक है, यूनिवर्स यूजुअली ये होता है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स ट्रबल में एक्चुअली पढ़ते हैं, वो ये होता है कि यूनिवर्सिटी तो रिकग्नाइज्ड होती है लेकिन इंस्टीट्यूशन नहीं रिकग्नाइज्ड होता। ठीक है, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी के मल्टीपल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, कोई डेंटल सेक्शन हो सकता है और कोई, अगर आप यहाँ नीचे देखें तो इनका एक मेडिकल सेक्शन भी हो सकता है जो ये डिग्री करवा रहा हो। तो जब आप उस इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं तो आपका यूनिवर्सिटी के साथ वो इंस्टीट्यूशन भी रिकग्नाइज होना चाहिए है। ठीक है, क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी की डिग्रीज के साथ ये इशू होता है, डाउ की यूनिवर्सिटीज के साथ ये इशू होता है कि उनको जो एंड में लेटर मिल रहा होता है वो उस सेम इंस्टीट्यूशन से नहीं होता है जिस इंस्टीट्यूशन को पीएमडीसी रिकग्नाइज करता है। ठीक है, दिस इज अ वेरी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन कि आपका ये भी रिकग्नाइज होना चाहिए इंस्टीट्यूट, और ये यूनिवर्सिटी भी रिकग्नाइज होनी चाहिए, फिर ही आपका पीएमडीसी क्लियर करेगा, वरना नहीं क्लियर करेगा। ठीक है, उसके अलावा फॉरेन क्वालिफिकेशन की भी पीएमडीसी के पास एक लिस्ट है, दिस इज अ क्यूआर कोड फॉर दैट। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं। दूसरा, आपको डॉक्टर आयशा बता चुकी हैं कि अगर कोई क्वालिफिकेशन पीएमडीसी के पास रजिस्टर्ड नहीं है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका ये होता है कि उसके अंदर एक पीजी फॉर्म होता है। ठीक है, आप सबके अकाउंट्स बने हुए होंगे, या अगर नहीं बने हुए, जब आप ग्रेजुएट करेंगे तो बन जाएंगे, तो उसमें पूरा तरीका होता है अपलोड करने का। लेकिन किसी भी डिग्री का, जैसे डॉक्टर आयशा ने कहा है, प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए, उसका प्रॉपर एंट्री टेस्ट होना चाहिए, प्रॉपर एग्जाम्स होने चाहिए, एक क्रेडिट आवर का स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर ये चीजें होंगी तो ही पीएमडीसी उसको रिकग्नाइज करेगा। तो द रीजन आई एम रशिंग इज के वी डोंट हैव इतना टाइम। ठीक है, तो वी विल बी शेयरिंग द रिकॉर्डिंग, कोई वापस जाके सुनना चाहे तो यू कैन गो बैक एंड लिसन टू द रिकमेंडेशंस। उसके अलावा आई विल री एम्फसाइज जो कि डॉक्टर आयशा कह चुकी हैं, प्लीज एक्सप्लोर योर ऑप्शंस। आपकी बेसिक और क्लिनिकल साइंसेज के अलावा भी डिग्रीज हैं, आप प्लीज उनको देखें जो आपको अच्छी लग रही है। ठीक है, अगर आपको हम जैसे टीचिंग रोल, जैसे मेरा है, एक मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है जिसमें मैं एक यूनिवर्सिटी का हिस्सा हूँ, इस तरह की कोई डिग्री करना चाह रही है, प्लीज गो अहेड फॉर मेडिकल एजुकेशन। लेकिन प्लीज वो डिग्री करें जिसको जो आपको पसंद है। ठीक है, वो ना करें जो सब कर रहे हैं। मेडिकल एजुकेशन में लोग सिर्फ इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि अच्छा आसान डिग्री है, डिस्टेंस प्रोग्राम है। प्लीज, दिस इज नॉट द क्राइटेरिया टू गो फॉर अ डिग्री। अगर आप उस फील्ड के बारे में पैशनेट नहीं है, आप उसमें नहीं आगे कुछ आगे कर सकेंगे। आई हैव सीन पीपल who are not well aligned but with this degree and they have done this degree as a primary qualification. ठीक है, अगर आप किसी डिग्री को बेस कर रहे हैं एज अ प्राइमरी डिग्री, तो वो ऐसी डिग्री होनी चाहिए जिसके बारे में आप पैशनेट हैं। उसके अलावा आप कोई डबल ट्रिपल डिग्रीज करना चाहें तो आप जाके फर्दर कर सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शंस बेतहाशा हैं जो कि डॉक्टर आयशा दे चुकी हैं, इस वजह से मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही होंगी। जस्ट इंफॉर्मेशन, वो लोग जो पब्लिक हेल्थ को लेकर हमेशा समझते हैं कि हम कम्युनिटी डेंटिस्ट्री में जाके काम कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी में काम कर सकते हैं, आप बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, पीएमडीसी का ये जो मैंने आपको क्राइटेरिया दिया है टीचर्स रेगुलेशन का, उसके अंदर क्लियरली मेंशन्ड है, फॉर दैट यू नीड अ कम्युनिटी डेंटिस्ट्री की डिग्री, जिसके मैं ऑप्शंस आपको दिखा चुकी। ठीक है, उसके अलावा दीज आर ऑल द अदर ऑप्शंस जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। जस्ट अनदर रिमाइंडर के मास्टर ऑफ बायो एथिक्स जो है पीएमडीसी के पास फिलहाल रिकग्नाइज नहीं है, सो यू कैन नॉट हैव इट एज योर प्राइमरी डिग्री। ठीक है, आप सेकेंडरी उसको करना चाहें, उसके ऊपर आप कोई ग्रोथ आपकी इस तरह से नहीं होगी, कोई आपको पोजीशन नहीं मिलने वाली किसी कॉलेज के अंदर। ठीक है, आई थिंक दिस इज ऑल, एंड एज डॉक्टर आयशा सेड के प्लीज एक्सप्लोर। ठीक है, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। क्लिनिकल साइंसेज, बेसिक साइंसेज, दुनिया बहुत बड़ी है। ठीक है, आप बेतहाशा चीजें कर सकते हैं। आपको डेंटिस्ट्री नहीं समझ में आ रही है, प्लीज गो अहेड, डू समथिंग एल्स। आई डिड मेडिकल एजुकेशन, आई एम डूइंग बायोएथिक्स, सिर्फ इस वजह से नहीं कि मुझे डेंटिस्ट्री नहीं पसंद, इस वजह से क्योंकि आई हैड अदर इंटरेस्ट आल्सो, मुझे वो ज्यादा अच्छे लग रहे थे उस वक्त। So this is something I wanted to do और इसी वजह से I did, and alhamdulillah I'm doing well in my field. ठीक है, उसके अलावा I will also say AI is what is growing at the moment. Please look into it.
डेंटल फोटोग्राफी के ऊपर आप कुछ कर सकते हैं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट के ऊपर आप कुछ कर सकते हैं, बेतहाशा आपके पास ऑप्शन है जो डॉक्टर आयशा ऑलरेडी दे चुकी हैं. विद दिस आई विल कंक्लूड एंड वी आर ओपन फॉर क्वेश्चंस अगर कोई पूछना चाह रहे हैं. थैंक यू एवरीवन. आई होप यू फाउंड द सेशन बेनिफिशियल. Dr. Aisha के लिए we had few questions in the chat. We will be taking those. And बाकी लोग please go ahead. Please have your questions यहाँ पे. Okay, does one's college GPA matters for FCPS or FDS? Sumaira, can you turn off your sharing screen? Definitely. Here you go. Thank you. Thank you. I was reading the chat in between. Thank you so much for this session. Actually, I would like to thank Dr. Sumaira for this PMDC thingy because this is something that nobody tells us और हम जाके कोई भी कचरा करके आ जाते हैं. I think the 10 years that we dinosaurs have spent in this field all Yes. navigating around ourselves. तो उससे हमें पता चला कि this is also a very important component that needs to be talked about. Okay. I was reading the chat. चलो पहले GPA की बात करते हैं. Like I keep on, this one comment has really struck my brain. तो वो मैं I'm gonna address. But पहले GPA की बात करते हैं. Okay. So GPA is something that tells you your academic expertise. So definitely it matters. But like I keep on saying कि हमें ना perspective change करने की जरूरत है for BDS. BDS is not just GPA. BDS is GPA plus skills plus your research plus your scholarly plus your volunteer work plus your soft skills, your communication skills. This is everything. अगर आपकी GPA for instance 2.5 है लेकिन आपने बाकी कुछ बहुत किया हुआ, आपने publications की हुई हैं, you have field experience, you have job experience, you have volunteer experience, you can show something that you made some kind of difference in the world, then GPA alone does not matter. GPA alone does not also matter in getting you something. किसी प्रोग्राम की अगर प्री रिक्विजिट हो कि आपको 2.5 से कम नहीं होनी चाहिए तो दैट इज समथिंग दैट मेक्स सेंस. 2 GPA in most cases does not reach the mark of passing criteria for most good universities. So in that manner GPA matters, but GPA is not the only thing that matters. I hope that answers the question. Second, the comment that has stuck my brain is the one by Umar. तो उमर ने 2 बातें बोली हैं जिसकी वजह से एक्चुअली ये सारा सेशन करना था बिकॉज आई कीप ऑन रीडिंग द सेम थिंग्स ऑन BDS सपोर्ट ग्रुप एज वेल एंड आई थॉट कि मैंने बहुत अच्छा सेशन दिया बट डेफिनेटली नहीं दिया बिकॉज दिस हैज अगेन कम अप. सो व्हेन वी टॉक अबाउट कि यू डोंट सी योर फ्रेंड्स हु आर इन अदर फील्ड्स doing better in 6 months, that is what I started with. Your expectations need to be aligned. Dentistry is very different from other fields. You do not get a job just because you have a degree. It's a skills based field and it's a service based business. तो उसके अंदर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको फौरन मिल जाएगी. Unpaid internships is not a bad thing because you yourself tell me you've done 4 years of BTS and then you've done just 1 year of house job in which आप सिर्फ 2 months की rotation करते हैं एक department में. Do you really feel confident enough to be operating in high-end clinics, etc.? अनपेड इंटर्नशिप्स का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने आप को एक्सप्लॉइट करने के लिए रेडी हो जाएं. अनपेड इंटर्नशिप्स का ये मतलब होता है कि यू मे बी गिविंग योरसेल्फ मोर टाइम टू बी ट्रेन टू बी गेटिंग स्किल्स सो दैट इवेंचुअली यू कैन प्रैक्टिस बेटर. बिकॉज अगेन इफ यू डू नॉट अलाइन योर एक्सपेक्टेशंस प्रॉपरली यू विल ऑलवेज बी डिसअपॉइंटेड. You cannot compare yourself to other fields because it's not the same. You cannot compare yourself to other countries, especially first world countries, because अगर आप अपने आप को third world country को first world country से compare करें, so you're comparing oranges and apples doesn't make sense. There are too many people who are competing for the internships because it is oversaturated. Yes, if 17 colleges are producing graduates and 17 colleges के graduates are looking for job opportunities in the same area, then it is definitely oversaturated. Dr. Sumaira can tell you better. The dentist to people ratio still in Pakistan is actually lesser than the entire world. So we still need more dentists. तो ऐसा नहीं है कि ये field saturated है. 6 figure की आपको नौकरी मिल जाएगी 10 साल के बाद.
उनको फॉरन इसलिए मिल गई स्कूल मेट्स को क्योंकि उन्होंने प्रॉपर्ली, इफ आई कंपेयर माई सेल्फ फ्रॉम द फ्रेंड्स हु आर डूइंग कॉर्पोरेट जॉब, तो ऑब्वियसली आई विल गो इनटू डिप्रेशन, बट आई डिडंट चूज कॉर्पोरेट जॉब एंड दे डिडंट चूज डेंटिस्ट्री, सो आई हैव टू अलाइन माई एक्सपेक्टेशंस अकॉर्डिंगली। और हमने ये बोला कि आप कि बाहर से जो आप करेंगे डिग्री वो यहाँ पर रिकवर नहीं हो सकती, सो उसका मतलब ये है कि आप वो चीज चूज करें जो आपके रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग हो। I did my master's after quite a while because obviously I could not afford my master's from abroad and I could not afford a lot of things. So when my friends who had the resources and money, they went to study abroad right away and I couldn't. That does not mean that I hate them. That does not mean that I compare myself. That does not mean that I say we have a shit healthcare system. We don't. That is exactly what it is with every other field in the world. आप अपने रिसोर्सेज के हिसाब से करें। इफ व्हाट आई मेंट बाय सेइंग कि आप नहीं इसको रिकवर कर सकते हैं, आप वो करोड़ों रुपए उस डिग्री पे लगाएंगे ही उस वक्त व्हेन यू नो कि आपके पास करोड़ों रुपए हैं। अगर आपके पास लाखों रुपए हैं और आप करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, देन दैट मीन्स यू आर मेकिंग अ रॉन्ग इन्वेस्टमेंट। सो अगेन, align your expectations and align your perspectives properly. Have realistic expectations with the field. Do not compare. You can become an aesthetician. Zunaira has asked that you want to become an esthetician. There are a lot of courses that are going on, diplomas and everything. I think after BDS right now, diplomas are also okay and you can practice aesthetic medicine. Again, जितना practice करेंगे, जितनी अच्छी skills होंगी, उतना patient pool ज़्यादा बन सकेगा. So I think keep a lookout for accredited courses. There is one by Dr. Seema, I think that is also accredited by JSMU. So you kind of look for these courses which are accredited by good universities. Licensing exam, what else do we need to do? Okay, so if you're asking about the licensing exams from abroad, I linked my profile and I told you guys to go for each country. हर country की अलग-अलग requirement है, और once you finalize कि this is the country that I'm going for, तो उस country का पूरा search करें। काफी सारी countries का तो लिखा होता है और आपको networking से मिल जाएगा कि what you need to do. International exam difficult, every exam is difficult, every postgrad is difficult, or it's not, you shouldn't be comparing. If you read the right materials, if you read the right things, if you read the their curriculum, you should be able to pass it. Acha, everyone who's asking me, is this worth to do? Like I said, you make the worth of it yourself. If you think that is your inclination, if you think you like that particular field, or if you want to switch, do it. But by worth, if you mean कि मैं नौकरी करूं, मुझे डिग्री मिले और मुझे उसके बाद मैं डिग्री करूं और मुझे डिग्री का पेपर मिलने के बाद नौकरी मिल जाए, दैट इज नॉट द राइट माइंडसेट टू गो अहेड। आप डिग्री कर लेंगे तो आपको अगले दिन कोई भी नौकरी नहीं दे देगा। डिग्री के बाद आप अपने आप को किस तरह से स्टैंड आउट कर सकते हैं कि जिसकी वजह से लोग आपको नौकरी दे दें। You can start somebody has asked, Ishal has asked, you can start your research by pairing up with your seniors and your teachers and your mentors, और उनके साथ लग जाएं। शुरू में आप you will be doing smaller researches or review articles or something like that, and then eventually you will be able to go ahead. आज का question, I think Sumaira will be better able to answer. I know how to get it accredited, but I think that's something for Sumaira. Which question, Dr. Aisha? Can you please talk a bit about how we can get a new degree accredited by PMDC if it's not already recognized by them? So you will have to apply through the PMDC platform. उसके अंदर आपका account generated होगा, एक form होगा जो fill करके देना है, and उसके बाद PMDC will do the rest of the work. They might call you for an interview. There might be a meeting held जिसकी basis पे वो evaluate करेंगे, and it needs to have very clear admission policy, examination, curriculum structure, proper credit hours. ये अगर होगा तो फिर वो usually accept हो जाती है. Thank you. Thank you. एक last question. हाँ, yes.
Hassan has asked, can we do BDS from Pakistan and postgrad from abroad? Will we be recognized or we will have to clear a license exam of postgrad too? Okay, so when you do your BDS, you do your house job, then you get a licensing certificate or the certificate to practice from PMDC. That is your licensing certificate in Pakistan. Whatever you do ahead, for the postgrad degrees, you do not have to sit for the licensing exam again in Pakistan. But if you do a BDS from Pakistan and then you do a post grad from abroad and you think कि वो post grad की basis पे आपको वहाँ practice करने दे देंगे, that's also wrong. आप PhD भी कर लें, आप कोई सी भी post grad कर लें, but to practice in any country, you need to have a license exam. BDS को करने के बाद, हाउस जॉब करने के बाद आपको जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस या आपको फाइनल सर्टिफिकेट PMDC सर्टिफिकेट मिलता है, दैट्स योर लाइसेंस टू प्रैक्टिस. यू डोंट हैव टू गिव इट अगेन. यू नीड टू गेट दैट पोस्ट ग्रेड रजिस्टर्ड ऑन द PMDC सर्टिफिकेट दो. Okay, I think we have covered most of the questions. If there are no more questions, we would like to, I think, end the session here because we're 7 minutes over time also. And thank you so much, Dr. Aisha. I think this could not have been better. इससे बेहतर कोई नहीं समझा सकता. ठीक है, and they can always follow you for more. Thank you so much for joining us. Lari, do you have any final words or should we close the session? Yes, I'm really thankful to you, Dr. Sumaira and Dr. Aisha, for collaborating with us. And words won't justify what you have taught us today. And seriously, अगर मैं सच बोलूं तो it was really eye-opening session. There have been always so many myths and third year students, final years हमेशा confused रहते हैं. So there were so many myths that you both have busted today, and really, really thankful to you guys for this amazing session. Thank you so much for having me, Dr. Sumaira. And there are no more questions, I think. So, and thank you. Thank you, Dr. Aisha. Thank you, Lari. Thank you, ma'am. Thank you to both.